Students, welcome to Physics Hub. This is my sixth lecture of current electricity. We have completed section 1 of this unit and this is the section 2 of current electricity. And in this video, we will discuss Kirchhoff's law of electricity. As Kirchhoff had given two laws, that is Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. First, we will discuss Kirchhoff's first law. It is also called as Kirchhoff's current law or junction rule. Now this law states that the algebraic sum of the current meeting at a junction in a closed circuit is 0. Okay, and this law also supports the conservation of charge because a point at junction O cannot be act as a source or sink of a charge. How? Because charges cannot accumulate here, they have to be in flow. Means if charges are entering here, they have to leave from this point, as given in this note that the charges cannot accumulate at a junction. The number of charges that arrives at a junction in a given time must leave in the same time in accordance with conservation of charges. Okay, now we consider a junction O in the electric circuit, okay, at which the 5 conductors are meeting. Let I1, I2, I3, I4 and I5 be the currents in these conductors as shown in figure. Okay, now let us use these sign conventions for solving this circuit. First sign convention is the incoming current towards the junction are taken as positive. Means these green lines, ये जो ग्रीन लाइंस है ये टूवर्ड्स द जंक्शन मूव कर रही है और इनको हम पॉजिटिव लेंगे एंड द आउटगोइंग करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव. मीन दीज रेड लाइन्स दीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, वी विल टेक देम एज negative. Now we get this I1 positive I1 because it is entering, minus I2 because it is leaving the junction, minus I3 leaving the junction, plus I4 it is entering the junction, and minus I5 because it is leaving the junction, and sum of all these currents is equal to 0. This is the Kirchhoff's second law. Okay, now coming to Kirchhoff's second law or voltage law or Root law. Now this law states that the algebraic sum of all the potential drops and EMFs along any closed path in an electrical network is always 0. Means suppose we have considered this circuit and in this we have taken the two loops ABCA and ACDA. This law states that sum of all the potential drop across R1 and R2 and plus the EMF is equal to 0. This law gives us supports the conservation of energy. That is, the net change in energy of a charge after charge completes a closed path must be 0. Means this law follows the fact that electrostatic force is a conservative force and work done by it any closed path is 0. Okay, now for solving this circuit we have to go through this sign convention. First sign convention is that we take EMF negative when we traverse from positive to negative terminal of cell through electrolyte, and positive when we traverse from negative to positive terminal of the cell. In this for solving this circuit diagram, first we consider a loop ABCA. Okay, now in these two loops, that is loop ABCA and loop ACDA, इन दो लूप्स में मैंने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है इस सर्किट को. मीन्स आप पहले उसको पॉजिटिव वे में भी सॉल्व करते हैं, एक नेगेटिव. जब हम इसको सर्किट को सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा. आप एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है, और उस पर ये डायग्राम बना लीजिए और मेरे साथ साथ जो मैं बोलूँगी कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा उसको मार्क कर दीजिए. इस तरह से आपको ये सर्किट समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा कि मैंने कैसे ये किया हुआ है.
फर्स्ट हम करेंगे लूप ए बी सी ए। हमने क्या किया है, अगर करंट टर्मिनल E1 को लीव कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से, तो हम उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ओके, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल R2 के एक एंड से कनेक्टेड है, तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव के साथ कोई चीज़ कनेक्टेड है तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर, और नेगेटिव के साथ ये जो R1 कनेक्टेड है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो उसकी दूसरी साइड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसकी दूसरी साइड पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपने मार्क कर लिए होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव अपने डायग्राम में। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये टर्मिनल करंट लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को, हम उसको नेगेटिव ले लेंगे, -E1 अपोजिट लेंगे, जिस टर्मिनल को वो लीव कर रहा है उससे अपोजिट साइन लेंगे। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था। अब जब करंट यहाँ से फ्लो करी तो ये लीव किया उसने नेगेटिव टर्मिनल, तो हमने साइन कौन सा लेंगे, अपोजिट साइन, दैट इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे प्लस आ गया, और क्योंकि यहाँ पे दो करंट्स हैं, दैट इज़ I1 इज़ ऑल्सो कमिंग to this and I2 is also coming in this, so we will get I1 plus I2 into R2। तो ये आ गया यहाँ पे I1 plus I2 into R2। ठीक है, अब करंट यहाँ पे एंटर करेगा, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव। तो अब जब करंट यहाँ से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल से निकला, तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव, तो हमने प्लस I1 into R1। और जब यहाँ E1 से निकला, वो पॉजिटिव से निकला, तो -E1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सर्किट की, जो शो करती है E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2। अब दूसरा मेथड ये है, जो हम लूप करेंगे ACDA, उसमें हम क्या करेंगे, हमने पहले में जहाँ से करंट लीव करती थी उससे अपोजिट साइन लिया था, लेकिन अब क्या करेंगे, जहाँ से करंट लीव कर रही है वही सेम साइन लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आप जो भी अप्लाई करें रूल, चाहे पॉजिटिव का लें चाहे नेगेटिव का, तो वो सब रजिस्टर्स पे भी सेम एप्लीकेबल होगा, EMF पे भी सेम एप्लीकेबल होगा। अब सपोज़ यहाँ पे हमने E2 लिया, करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, तो E2 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमने E2 पॉजिटिव ही लिया। ठीक है, जब E यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, और जब करंट यहाँ पे आई पॉजिटिव के थ्रू और निकली नेगेटिव के थ्रू, तो नेगेटिव लीव किया तो हमने नेगेटिव ही लिया एज इट इज़। तो हमारे पास क्या आएगा, -I1 प्लस I2 इंटू R2। अब करंट यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव, करंट यहाँ पॉजिटिव से एंटर होकर नेगेटिव टर्मिनल से निकली, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव ही लिया, -I2 इंटू R3। तो E2 से निकली तो वो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव ही लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हम इस इक्वेशन को दो तरीके से कर सकते हैं। ओके, होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसको समझने में, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी उस चीज़ का जो आपको क्वेरीज़ हैं इस लॉ को समझने में। थैंक यू।